Class 11. My dear student, today I want to start three-dimensional geometry. This three-dimensional geometry is nothing but if we apply one dimension in two-dimensional geometry, that is height, then it will be three-dimensional geometry. So before starting three-dimensional geometry, it is my advice that you must read three dimension by taking help of two dimension. Now suppose this is length, this is breadth, and this is height, and if you observe a corner of room, that time you will observe that the length, breadth and height both are mutually perpendicular. So without observing, without seeing, you can't feel that length, breadth and height are mutually perpendicular. प्रिय विद्यार्थियों, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को म्यूचुअली परपेंडिकुलर देखने के लिए तुम कॉपी को भी देख सकते हो, कॉपी के किनारे को भी देख सकते हो, लेटरल सरफेस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पर स्थित है, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर. द वर्ड इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर. लेकिन ब्लैक बोर्ड में इसको दिखाया नहीं जा सकता है, इसलिए ये लग नहीं रहा है 90 डिग्री हो. ये तो लग रहा है 90 डिग्री हो, लेकिन ये भी नहीं लग रहा है 90 डिग्री और ये भी नहीं लग रहा है 90 डिग्री. तो इस कंसेप्ट को गहरा करने के लिए आप अवश्य क्यूबाइड को देखें, क्यूबाइड के सरफेस को देखें. प्रिय विद्यार्थियों, let O be the origin and let OX, OY and Z be three mutually perpendicular sides taken as the x-axis, the y-axis and the z-axis respectively in such a way that they form a right-handed system. This is very important. OX, OY, OZ forms a right-handed system, means all are mutually perpendicular to each other. The planes YOZ, YOZ, ZOX and XOY are respectively known as YZ plane, ZX plane, XY plane. In this way, we can denote the name of the planes. ये तीन प्लेन के पीछे वाला हिस्सा हुआ, तीन प्लेन के आगे वाला हिस्सा हुआ, 6 पार्ट हुआ. फिर सबको मिला के एक पार्ट 7, फिर सबके पीछे एक पार्ट, इसलिए 8 ऑक्टेंट में बांटता है 3 परपेंडिकुलर लाइन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक 7वां और 8वां स्पेस हुआ, लेकिन ये सब प्लेन हुआ. These planes, known as coordinate planes, divide the space into 8 parts called octants. So my dear student, consider a point P in the space XYZ. Then the distance of P from XY plane is Z-axis. The distance of plane from XY plane is Z-axis. And this is distance of plane here from ZY plane is X-axis. This is X-axis. This is Z-axis. And distance of plane from ZX plane is Y. Y-axis, not Y coordinate. X coordinate. And this is Z coordinate. So in this way we can determine the position of a point in a plane, in a space, not plane. So let P be a point in space. Through P, draw planes parallel to coordinate planes and meeting the axes OX, OY and OZ in points A, B and C respectively. Let OA is equal to X, OB is equal to Y and OC is equal to Z. Then we say that coordinates of P are X, Y, Z. Important point. X, distance of P from YZ plane. Y, distance of P from XZ plane. And Z, distance of P from XY plane. As a consequence of the above facts, we find that every point in YZ plane has
एक्स कोऑर्डिनेट 0। क्योंकि वाइजेड प्लेन से यदि कोई पॉइंट वाइजेड प्लेन पर रहेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट? डिस्टेंस फ्रॉम वाइजेड प्लेन। तो वाइजेड प्लेन में कोई प्लेन रहेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। सिमिलरली एवरी पॉइंट इन जेड एक्स प्लेन हैज वाई कोऑर्डिनेट 0। एवरी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन हैज जेड कोऑर्डिनेट 0। इन दिस वे वी कैन गेट बेसिक कंसेप्ट्स। प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए मैं पहला वीडियो को आप ध्यान समझिए। मैं एक एक चीज़ को बहुत ही स्प्लिट करके तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ ताकि आप समझ पाइए। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स 0 0। एक्स एक्सिस पर पढ़ने वाले सभी पॉइंट का स्पेस में क्या होगा? केवल एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y, 0, 0, y, 0। 2D में देखिए, 2D में कोई पॉइंट ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। कहाँ कर रहा है? एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट हियर फ्रॉम origin. Distance of a point from origin. Now suppose P is a point. The distance of a point from y-axis is known as x coordinate, and distance of a point from x-axis is known as y coordinate. That's why when a point lies on axis, its y coordinate is 0. Distance of a point from x-axis, x-axis से दूरी उसका y coordinate. तो जब x-axis पर लाई करेगा तो y coordinate 0 होगा। उसी प्रकार 3D में यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस, ये प्लेन हुआ एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लेन, ये हुआ एक्स जेड प्लेन, और ये हुआ वाई जेड प्लेन, और ये हुआ एक्स जेड प्लेन। प्रिय विद्यार्थी, इसको ठीक से देखा। Suppose a point P, the coordinate of a point on x-axis is x 0 0. What does it mean? ये हुआ कौन प्लेन? एक्स वाई प्लेन। ये हुआ कौन प्लेन? वाई जेड प्लेन। ये हुआ कौन प्लेन? जेड एक्स प्लेन। तो किसी भी पॉइंट का वाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स जेड प्लेन से दूरी। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? वाई जेड प्लेन से दूरी। और वाई जेड प्लेन से दूरी और जेड एक्स प्लेन से दूरी, इसका वाई कोऑर्डिनेट है। जेड एक्स प्लेन से दूरी वाई कोऑर्डिनेट है। तो जब प्लेन वाई एक्सिस पर, जब पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है तो इसका दूरी केवल वाई जेड प्लेन से होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट होगा। इससे और इससे दूरी नहीं होगा। जेड एक्स प्लेन से भी दूरी नहीं होगा और एक्स वाई प्लेन से भी दूरी नहीं होगा। इन दिस वे वो दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पर तो लाई कर ही रहा है, इसलिए उसका डिस्टेंस 0 हो जाएगा। इन दिस वे प्रिय विद्यार्थियों, इस सोच को, इस विचार को हमको एलिब्रेट करना है, तभी तुमको ये ज्ञान होगा। का डिटर्मिनेशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का ध्यान रखना है, क्योंकि इससे अनेकों अनेक सवाल 12 में पूछे जाते हैं और 11 में भी पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो प्रिय विद्यार्थियों, फिर समझ लो, एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट लाई करता है तो इसमें क्या है? जेड एब्सेंट है, तो जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। जेड वाई प्लेन में कोई पॉइंट लाई करता है तो इसमें क्या एब्सेंट है? एक्स, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। जेड एक्स प्लेन में कोई पॉइंट लाई करता है तो इसमें क्या एब्सेंट है? वाई, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह आप किसी भी पॉइंट का स्पेस में, प्लेन में, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर पोजीशन को डिटरमाइन कर हो जाता है। तो इस बातों को ध्यान में रख के 2D को पढ़ते हुए 3D पढ़िए। रीड 3D भाया 2D विल बी दिस स्लोगन, देन यू कैन गेट सक्सेस।
तभी तुम सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। यू कैन गेट सक्सेस कब? फर्स्ट यू रीड, कंडीशनल बात हो गया, फर्स्ट यू रीड 2D 3D बाय अप्लाइंग 2D, देन यू विल गेट सक्सेस। कंडीशनल सेंटेंस अंग्रेजी का हम लोग बना दिए, तो इस तरह हम लोग काम किए। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये सारी बातों को हम इस टेबल में समाहित करना चाहते हैं, एक्यूमुलेट करना चाहते हैं। मैंने कहा कि 2D में देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, और जेड एक्सिस यदि ऊपर में रहा, इस तरह रहा, इस तरह जेड एक्सिस ऊपर में रहा, जेड एक्सिस ऊपर में रहा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई तो पॉजिटिव है ही, और जेड भी ऊपर की ओर पॉजिटिव, तो एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, और जेड तो इस पर क्या हुआ, जेड हाइट हुआ है, जेड हाइट हुआ, तो जेड हाइट हुआ, एक्स मान लो ये है तो इसका पीछे वाला हिस्सा नेगेटिव, यही तरीका है, पीछे वाला हिस्सा नेगेटिव। पीछे वाला हिस्सा कैसे दिखाएंगे? तो इस तरह फील करेंगे, यहाँ देखेंगे 2D में ये हिस्सा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जेड ऊपर की ओर परपेंडिकुलर है, जेड यहाँ कहीं और है, ऐसा है, ऐसा है जेड, तो जेड ऊपर की ओर है, तो जेड पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक बार, फिर एक बार जेड नीचे चला गया, फिर एक बार जेड नीचे चला गया, तो फिर चारों क्वाड्रेंट में, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8 में जेड नेगेटिव। इस तरह देखो जेड 4 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ऊपर की ओर हाइट रहेगा, ऊपर की ओर हाइट रहेगा। कब? जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहे, थर्ड क्वाड्रेंट में रहे, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहे। क्लियर? फिर इसको नीचे की ओर कर दिए, नीचे की ओर के लिए क्या व्यवस्था है 3D में है, इस तरह डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स ये, यदि ओजेड है तो ओजेड डैश इज नेगेटिव, ये व्यवस्था हुआ। तो हम लोग ऐसे विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं कि ये हाइट हुआ, एक बार हाइट ऊपर 4 क्वाड्रेंट में, एक बार हाइट चारों क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव, तो ये चारों क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव। फर्स्ट में पॉजिटिव एक्स, सेकेंड में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में भी 2D देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स, सेकेंड में नेगेटिव 2D देखिए, 2D देखिए सेकेंड में नेगेटिव, और थर्ड में भी ये नेगेटिव एक्स, थर्ड में भी नेगेटिव, फोर्थ में देखिए पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, फोर्थ पॉजिटिव, एक राउंड घूम गया, तब फिफ्थ यहाँ से चला, फिर यहीं से स्टार्ट हुआ, फिफ्थ पॉजिटिव, सिक्स्थ नेगेटिव, फिर सेवन्थ नेगेटिव और 8th नेगेटिव। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह हम 2D के मदद से 3D पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। देखिए वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ देखिए, वाई कोऑर्डिनेट 2D पढ़िए, वाई कोऑर्डिनेट कब कब नेगेटिव होगा देखिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, एक चक्कर कंप्लीट हो गया, फिर सिक्स्थ क्वाड्रेंट में और सेवन्थ क्वाड्रेंट में, सिक्स्थ क्वाड्रेंट में न, सेवन्थ क्वाड्रेंट और 8th क्वाड्रेंट में वाई, वाई देखिए तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में नेगेटिव, सिक्स्थ नेगेटिव, 7 नेगेटिव, एक दूसरा राउंड चलिए, पीछे वाला हिस्सा सेवन्थ नेगेटिव और 8 में वाई नेगेटिव, सेवन्थ नेगेटिव, यहाँ देख लीजिए 8 नेगेटिव, यहाँ से गिनिए 1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अब पीछे वाला हिस्सा फिफ्थ, फिफ्थ में पॉजिटिव, देख लीजिए फिफ्थ में पॉजिटिव, और फिर सिक्स्थ में भी पॉजिटिव, सिक्स्थ के लिए पॉजिटिव, सेवन्थ के लिए नेगेटिव और 8th के लिए नेगेटिव। इसलिए 2D के हिसाब से 3D पढ़िए, आपको बहुत लाभ होगा। विजुअलाइज कर सकते हैं, फर्स्ट ऊपर वाला भाग, सेकेंड क्वाड्रेंट ऊपर वाला भाग, थर्ड क्वाड्रेंट ऊपर वाला भाग, फोर्थ क्वाड्रेंट ऊपर वाला भाग, फिर उसके नीचे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th। फिफ्थ में पकड़िए, फिफ्थ में क्या हुआ यहाँ पर देखिए, वाई एक्सिस एक राउंड हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, या फिफ्थ क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पर देखिए फिफ्थ
में y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ऊपर की ओर ये। सिक्स्थ में भी पॉजिटिव, लेकिन सेवन्थ में ये नीचे चला गया, और एट्थ में भी नेगेटिव, इसलिए यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन तरह से इसको बार बार पढ़िए, मेरे वीडियो को बार बार देखिए, किताब में आपको नहीं मिलेगा, किताब में कॉन्साइज रूप मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट्स, नाउ वी वांट टू डिस्कस थ्योरम नंबर 1। प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P x1 y1 z1 Q x2 y2 z2 is given by PQ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। प्रिय विद्यार्थियों, 2D में हम क्या करते हैं, सपोज कोई पॉइंट यहाँ आया x1 y1, कोई दूसरा हो गया Q x2 y2, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये तो आया ही। अब z2 माइनस z1 एक 3 डायमेंशन आ गया, ये पॉइंट 3 डायमेंशन हो गया, z2 माइनस z1 फिल कीजिए। कोई पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, Q का x2 y2 z2। नाउ सी हियर, नो नीड ऑफ दिस। So let O be the origin and P x1 y1 z1 be the origin given point. From P and Q, PM and Qn are drawn perpendicular on yz plane. On yz plane. So PM and Q are drawn perpendicular on xy plane. This is xy plane. Then the coordinates of M and N are x1 y1 0 and x2 y2 0। M का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 y1 z1 0, यहाँ क्या हो गया x2 y2 z2 0। So my dear student, Mn is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. In right angle triangle PRQ, PQ square is equal to PR square plus RQ square. PR is equal to Mn square. RQ is equal to Qn minus Nr. So PQ square is equal to Mn square plus Qn square minus Mn का whole square. So it will be PQ square is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. So PQ is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. The distance of the point Px1 xyz from the origin 0 0 will be x minus 0 whole square, y minus 0 whole square, z minus 0 whole square. So OP is equal to, this distance is equal to, OP means this distance, तो P का कोऑर्डिनेट x y z रहे तो क्या होगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस 0 होल स्क्वायर, z माइनस 0 होल स्क्वायर। प्रिय विद्यार्थी, इस तरह इसको समझना चाहिए। मैंने अभी डिस्कस किया, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड डिस्कस्ड दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2D में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, लेकिन जब 3D होगा तो एक डायमेंशन और ले लेंगे, z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। इस तरह चीज़ों को समझिए और सवाल बनाने में आप इस थिंकिंग का उपयोग कीजिए और यहाँ विजुलाइज कीजिए। इस तरह हम 3 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक हुआ, आप सवाल बनाने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, कंसेप्ट के लिए यहाँ विजुलाइज कीजिए फिगर को, और इस तरह आप बनाइए। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह हम अब एक थ्योरम बचा, केवल वो है सेक्शन फार्मूला, जो हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।